class 11th, subject chemistry, chapter chemical thermodynamics. Means thermodynamics is a science that deals with the energy change involved in all type of physical and chemical processes. When the study is concerned only with chemical changes and chemical substances, then it is called chemical thermodynamics. Thermodynamics is an important subject which helps to predict that whether a chemical process can be placed or not under the given set of conditions of temperature, pressure and concentration. Means the law of thermodynamics are applicable only to macroscopic systems. Thermodynamic changes are independent of time, rate of change, and internal structure of a substance. Means it concerns itself only with means it concerns itself only with the initial and final states of systems and not with the path taken by the process. Law of thermodynamics are based on human experiences and are always true. Nothing contrary to these laws has yet been found. A number of facts in this topic are related to heat energies, which act as a technique to transform heat into work. Thermodynamics is unaffected by the nature of system and it is applicable to all systems uniformly. Means थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर में या किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में एनर्जी एनर्जी चेंज की स्टडी करते हैं। हमारा कंसर्न केमिकल चेंज या केमिकल सब्सटेंस में हो रही एनर्जी चेंजेस से होता है। थर्मोडायनेमिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमें प्रेडिक्ट करता है क्या कि केमिकल प्रोसेस कैन बी प्लेस्ड हो सकती है और नॉट, कब और कैसे, किस टेम्परेचर, किस प्रेशर और किस कंसर्न पर। सम बेसिक कॉन्सेप्ट विच आर रिलेटेड टू thermodynamics, that's are open system, a system which can exchange with energy and matter with their surroundings is said to be an open system. Example, water kept in an open vessel vaporized by taking heat from its surrounding. It is the system where is an exchange of both matter and heat. Means फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिस्टम क्या है। सपोज करिए you are performing any type of reactions or you see any type of changes in your surrounding, in your body, in your class or anywhere। मान लीजिए आप कोई केमिकल रिएक्शंस रूम के अंदर टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करा रहे हैं तो उसका सिस्टम क्या है, उसका उस सिस्टम जहाँ पर आप उस केमिकल रिएक्शंस को देख रहे हैं परफॉर्म हो रही है। हो सकता हो टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म हो रही हो सकता हो वो यूनिवर्स पर परफॉर्म हो रही हो। तो जहाँ पर वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है वो एक सिस्टम है। उसके रिमेंस जो भी रिमेंस रहता है, सेव होता है, बचता है, वो सराउंडिंग कहलाता है। अब बात आई सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम क्या है, जहाँ पर रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है उसके मीन एक्स्ट्रा या उसके अगेंस्ट रिमेंस जो बचता है वो सिस्टम है, वो सराउंडिंग है। अब हमारे पास टू टाइप सिस्टम, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम। यदि हम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर और हीट दोनों का एक्सचेंज करते हैं तब उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे ओपन कंटेनर पर हमने वाटर बॉयल किया, वाटर वेपर फॉर्म रिलीज हो गया और हमें एम्प्टी कंटेनर मिला। क्लोज सिस्टम, a system which only the exchange energy take place and with the surrounding is called closed system. For example, hot water container is sealed tube, only heat can be transformed to the wall of tube to the surrounding and not of the water vapor। मीन्स जो केवल एनर्जी का एक्सचेंज करता है, मैटर का नहीं, वो क्लोज सिस्टम कहलाता है। थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड, ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम जो ना तो हीट और ना ही मैटर दोनों किसी का एक्सचेंज अपने सराउंडिंग से नहीं करता, वह आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ सब्सटेंस
say boiling water in a thermos flask. Since the flask is sealed, water vapor and cannot escape from it, and flask is insulated, not exchange of heat may take place with the surrounding. आपके पास हार्ट इंसुलेटेड वाटर बॉटल होते हैं, उसमें आप पानी को गर्म करके फिलअप कर देते हैं, बहुत देर तक गर्म रहता है. क्यों? बिकॉज दैट वाटर डू नॉट exchange matter or energy with their surroundings. Next is the microscopic system. Important term, microscopic system. Microscopic system means a system formed by the assemblage of large number of molecules, radicle or atom is called microscopic system. In other words, it consists of matter in bulk. Properties such as volume, pressure, temperature, density, velocity, constitution or other terms as term as the microscopic property of the system. सपोज करिए आपको पहले कहा गया है ये सारी प्रॉपर्टी किसी भी थर्मोडाइनमिक्स लॉ के अगेंस्ट नहीं, बट हम एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रेडिकल या एटम से फॉर्म करेंगे या होता है जहाँ पर बल्क अमाउंट में मटेरियल पार्टिसिपेट करता है, तब हम उसे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के नाम पर जानते हैं. नेक्स्ट टर्म थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जिस तरह की प्रोसेस होगी, जिस तरह का इंटरेक्शन होगा, उसके बेस पर हमारे पास कई तरह की थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस मिलते हैं. जस्ट लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस, a process in which the temperature of system remain constant throughout the process, that is called isothermal process. जिस सिस्टम पर रिएक्शन परफॉर्म की जा रही है, यदि उस सिस्टम का टेम्परेचर ऑल ओवर इनिशियल से फाइनल रिएक्शन होने तक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तब हम उसे आइसोथर्मल प्रोसेस. सेकंड, एडियाबैटिक सिस्टम. ड्यूरिंग each step of process, neither heat enter nor leaves the system. Such process is termed as adiabatic system. Means temperature of system varies accordingly as the chemical reaction taking place in the system in endothermic or exothermic. समझिएगा बात. Adiabatic system ड्यूरिंग द ईच स्टेप ऑफ प्रोसेस के हर स्टेप में ना तो हीट इंटर करती है सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम पे, और ना ही सिस्टम से सराउंडिंग की ओर रिलीव होती है. ऐसे कंडीशन पर जब हीट कांस्टेंट हो बॉडी सिस्टम के अंदर की, ताकि वो हीट किस फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस जो परफॉर्म हो रही है उसके द्वारा इंक्रीज की गए टेम्परेचर के फॉर्म में मेजर की जा सके. थर्ड, आइसोबैरिक सिस्टम प्रोसेस मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम और का क्या हो, प्रेशर जो हो कांस्टेंट हो रिएक्शन इनिशिएशन से फाइनल स्टेज तक. आइसोक्रोनिक प्रोसेस. ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ आइसोक्रोनिक प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. मीन्स हम पूरे प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, प्रेशर चेंज हो जाता है. साइक्लिक प्रोसेस, अ प्रोसेस ड्यूरिंग एक ऐसी प्रोसेस goes given stage goes through a number of different process and finally return at initial state. जो डिफरेंट स्टेट से होते हुए लौटकर उसी स्टेट पर टर्मिनेट होती है जहाँ से वो इनिशिएट होती है. ऐसी प्रोसेसेस हमारी क्या कहलाती हैं? साइक्लिक प्रोसेस. मीन्स हमने आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट किया, एडियाबैटिक में हमने हीट को कांस्टेंट कर लिया, एक्सचेंज नहीं होने दिया. आइसोबारिक में हमने प्रेशर कांस्टेंट दिया, आइसोक्रोनिक में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट किया. और साइक्लिक प्रोसेस इनिशिएशन और फाइनल पॉइंट सिंगल होता है या एक ही होता है, जहाँ से इनिशिएट होती है वहीं पर एक स्टेप को परफॉर्म करते हुए वो रिएक्शंस फिर रिटर्न होकर वहीं पहुँचते हैं, तो हम उसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस. आफ्टर दैट another term, heat means you have studied your previous classes. Heat is a form of energy. When there is a difference in temperature of a system and the surrounding, the exchange of energy take place in form of heat. When the temperature of system is greater than surrounding, it is transformed from system to surrounding. This reduces the temperature of the system. If the temperature of the system is less than
that of surrounding, then heat is transformed from surrounding to system. In both the cases, transference of heat take place till the temperature of the system and surrounding are not equal. The amount of heat is denoted by Q. आप समझ आ रहे हैं? Next term, energy. Energy is defined as a capacity of doing work. Energy have various forms. Energy may be chemical, electrical, mechanical. Heat is also a form of energy. Energy involved in physical and chemical processes. This involvement may be in form of work, heat, light, energy related to atom or molecule present in system is called energy of the systems. Particle have various type of energy, for example, nuclear energy, bond energy, kinetic energy, potential energy, etc. So, after that, the concluded that energy is the defined as capacity of doing work and heat is a form of energy. After that, what is the properties? Two type of properties of the system. First, intensive properties. Second, extensive properties. Extensive and intensive properties. Properties of a system which are independent of the amount of matter present in the system are called intensive properties, just like temperature, density, pressure, surface tension, velocity, molecular volume, specific heat. These properties are called specific properties or intensive properties. And which properties of a system that depend upon the amount of matter in the system are called extensive properties: mass, volume, internal energy, enthalpy, heat capacity, entropy, free energy. Means these properties means mass, volume, internal energy, del H enthalpy, heat capacity, entropy del S, del G free energy are depend upon the amount of matter which are exist in the system for the chemical or physical change. So it is called extensive properties. State of system. State of system means the condition for the existence of a particular system when its macroscopic properties are fixed. Macroscopic properties we have studied before. If there is a change in any microscopic property of the system, then its state is altered, means changed. Suppose then at 25 degrees centigrade and 1 atmospheric pressure, water is a system which definite values of microscopic properties in the state. If temperature is raised from 25 to 50 degree, then in other macroscopic properties would also change on their own and would attain certain definite values. At 50-degree water would experience a change in their state. It is known as the system. State function and variable. Important terms, two terms. What is the state function or state variable? Some thermodynamic parameters depend only upon the initial and final state of system. That parameters which are depend upon only initial to final state of the system that are known as the state function. Means state function, we can say that state function are independent of the path or mechanism or the way by which change is accomplished do not matter the matter related to state function. The state of a system in which its microscopic properties attain definite values is called its state function. A change in any microscopic properties of system is accompanied with the change of state of system. Fundamental microscopic property which determine the state of system are pressure,
मेंशन करिएगा। हमारे सिस्टम के स्टेट को या स्टेट पर डिपेंड होने वाली प्रॉपर्टीज़ को कौन डिटरमाइन करेगा? तो फंडामेंटल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ कौन है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मॉस एंड कंपोजिशन, अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी are some of the other state function of a system. State functions whose values depend upon the path or mechanism through which a system came from initial state to final state are called path function. मीन्स जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा वो स्टेट फंक्शन, और जो पथ पर डिपेंड करेगा वो पथ फंक्शन. वर्क एंड हीट आर द पथ फंक्शन. ध्यान रखिएगा, वर्क एंड हीट आर द क्या है? पथ फंक्शन है. हर स्टेप पर कितनी एनर्जी यूज हो रही है और वो कितनी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? वर्क में कन्वर्ट हो रही है. सो इट इज नोन एज द पथ फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ माउंटेन पीक from the surface of earth is a state function because its value is independent of the way we climb it. On the other hand, the work done to reach the mountain peak depend upon the base chosen. Thus, it not a state function. Heat Q and work are not a state function. क्यों? Suppose that किसी माउंटेन की पीक जो है वो 100 मीटर है. आप रास्ता जिस पर चूज करेंगे, इनिशियल और फाइनल जो उसकी पीक होगी वो निश्चित है, जिसे स्टेट फंक्शन है. और जो रास्ता आपके द्वारा चूज किया जाएगा वो फिक्स नहीं है, इसलिए वो क्या है? स्टेट वेरिएबल है. फर्स्ट टर्म, इंटरनल एनर्जी. There is a great importance of internal energy in thermodynamics. Thermodynamic system, definite quantity of energy is related to every particle present in the system, depend upon temperature, pressure, volume. This energy is called internal energy of the system. Internal energy is a state function. Its value depend upon the state of function and is independent of path by which is attained. Internal energy of system is the sum of various type of energies, just like translational energy, rotational energy, vibrational, electronic, interaction energy, nuclear energy, bond energy, etc. The sum of all possible kind of energies of a system is called its internal energy. It's not possible to determine the absolute value of internal energy as it consists of various type of above mentioned molecular energies. The value of these energies depend upon the constitutions of molecules, substance, nature of atom in molecules, number of atoms and their electronic configuration. Absolute value of internal energy is neither possible to determine nor does it have any importance in thermodynamics. In thermodynamics, we are concerned only with the energy changes when a system undergoes a change in state. Thus, only the differences of energies initial and final state is taken. So, no mention why we take the absolute value of internal energy. So, internal energy change value depend upon the initial and final state and not on the mechanism of the process and the time taken. Measurement of del U means measurement of internal energy. Del S means internal energy change. We use the bomb calorimeter to measure the del H. Del U means internal energy change. मीन्स हम एक बॉम्ब कैलोरीमीटर सेटअप करते हैं या लेते हैं, उसके थ्रू हम मेजर करते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है. हम इसके लिए कैलोरीमीटर का ही प्रॉपरली यूज़ करते हैं, लेकिन पूरी मैकेनिज्म बॉम्ब कैलोरीमीटर पर पूरी होती है, इसलिए इसे बॉम्ब कैलोरीमीटर के नाम पर जाना जाता है. क्या करते हैं हम कि बॉम्ब कैलोरीमीटर is made up of steel contain two platinum electrodes joined together by platinum wire. That shape is S. S wire is connected with platinum cup situated below the bottom. A small known quantity of substance whose value to be determined. हम एक दो इलेक्ट्रोड और कैथोड सेट करते हैं आइडियल कंडीशन पर. हम एक एस टाइप के कप प्लेटिनम वायर, एक प्लेटिनम कप और उससे वायर्स ऐड करते हैं
जिसका हमें डेली डिटरमाइन करना होता है। सपोज देन हमने W ग्राम मास वाला वाटर लिया, वो वाटर इक्विवेलेंट है W ग्राम के, हम उसका T डिग्री टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं। हमने X ग्राम मटेरियल को इग्नाइट किया, मॉलिक्यूलर मास उस सब्सटेंस का m था, उनने जितनी भी हीट प्रोड्यूस की गई उतनी हीट वाटर ने ऑब्टेन या रिसीव करी और उसे हमने कैलोरीमीटर से मेजर किया। क्लियर हुआ? तो हमने आइडियल इलेक्ट्रिक स्पार्क इस्टेब्लिश किया, आर्क इस्टेब्लिश किया, और वहाँ पर हमने जिस मटेरियल का हमें क्या करना था, साथ में हम एक स्टेरर और थर्मोमीटर लगा रखे हैं। स्टेरर से हम क्या करेंगे, स्टीयर करते रहेंगे वाटर को, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो हीट का वो प्रॉपर हो सके। अंदर जब ऑक्सीडेशन परफॉर्म होगा तो उसमें पर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, उसके कारण वाटर में वाटर के टच में हुई हीट ट्रांसफ़र होगी, जो थर्मोमीटर के द्वारा मेजर किया गया जाएगा। मीन्स इसके ऑक्सीडेशन से जो भी इंटरनल चेंज होगा वह मेजर हो जाएगा। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। First law of thermodynamics shows equivalence of various form of energy. First law of thermodynamics shows equivalence of various form of energy, which is called law of conservation of energy. The exchange of energy between the system and surrounding is represented by the first law of thermodynamics. This law is based on natural experiences and the failures of construct a perpetual motion machine which can do work without the expenditure of energy। क्या कोई ऐसी मशीन बनी जो विदाउट एनर्जी को खर्च किए, एक्सपेंड किए कोई वर्क परफॉर्म कर सके? दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट एक्सप्रेस बाय मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज। नाम ध्यान रखिए, मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज। उनका मतलब क्या था कि when one energy and one form of energy appears then equal amount of another form of energy disappear। मीन्स जब एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो दूसरी तरफ उतने ही अमाउंट में दूसरे टाइप की एनर्जी डिसअपियर हो जाती है। मीन्स नाइदर कैन एनर्जी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो कंस्ट्रक्ट हो सकती ना तो डिस्ट्रक्ट हो सकती, केवल हो सकती है तो ट्रांसफॉर्म हो सकती है उस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। चलिए जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफिकेशन ये है, नो सच मशीन एग्जिस्ट व्हिच कैन वर्क विदाउट द कंजप्शन ऑफ एनर्जी और मशीन कैन ट्रांसफॉर्म एनर्जी इनटू वर्क अनलेस until energy is supplied into the externally। मीन्स बिना एनर्जी के वर्क नहीं और बिना वर्क के एनर्जी नहीं। when current is passed through a heater, जब हम हीटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, इट बिकम हॉट, वो गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज जाती है? हीट एनर्जी में चेंज जाती है, मीन्स ट्रांसफॉर्म हो गई एनर्जी। एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आल्सो। सपोज देन हम 286 किलो जूल पर पानी को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो यदि हम उसे कंडेंस करते हैं तो इतनी एनर्जी निकल कर बाहर हो जाती है according to Joule experience। When the mechanical work is transformed into heat, then it is observed that by the expenditure of 4.18 into 10 to power 7 arg work, the same amount 1 calorie of heat is produced। ध्यान रखिएगा इस अमाउंट को। क्या किया था उन्होंने, जूल ने? जब उन्होंने 4.18 इंटू 10 टू पावर 7 अर्ग वर्क को खर्च किया तो उन्हें कितना मिला? 1 कैलोरी हीट मिली। मीन्स 1 कैलोरी हीट ने कितना वर्क किया? तो 4.18 इंटू 10 टू पावर 7 अर्ग वर्क किया। क्लियर? मीन्स 1 कैलोरी प्रोड्यूस हुई। मैकेनिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। लेट अस क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम। सपोज देन कोई सिस्टम है, उसमें हमने क्यू अमाउंट हमने उस सिस्टम को क्या दी? एनर्जी प्रोवाइड कराई। क्यू एनर्जी सप्लाई करने पर हमने उसे कौन सी हीट एनर्जी सप्लाई करी? क्यू। इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो जो इसकी इंटरनल एनर्जी U1, सपोज मान लेते हैं U1 है, उसमें क्यू एनर्जी और इंक्रीज हो गई, तो मतलब एनर्जी कितनी हो गई टोटल? U1 प्लस क्यू। आल्सो यूटिल, सपोज देन जो क्यू एनर्जी हमने उसे सप्लाई करी सिस्टम को, उस क्यू एनर्जी का कुछ अमाउंट सिस्टम में वर्क करने पर स्पेंट हो गया, खर्च हो गया, यूटिलाइज हो गया। मीन्स कितना वर्क किया गया? W वर्क किया गया। क्योंकि कुछ अमाउंट का और जो कुछ सम अमाउंट था वो इंटरनल एनर्जी के साथ ऐड हो गया, तब U2 मीन्स
कितनी होगी, तो आपने कहा U2 पहले सिस्टम पर कितनी एनर्जी टोटल, तो आपने कहा इंटरनल एनर्जी U1 एनर्जी थी। आपने कितनी एनर्जी उसे सिस्टम पर आपने सराउंडिंग से सप्लाई करी, क्यू अमाउंट आपने सप्लाई किया। लेकिन आप ध्यान दीजिए क्यू अमाउंट में कुछ अमाउंट, कितना अमाउंट, डब्ल्यू अमाउंट आपने वर्क में स्पेंड कर दिया। तो क्यू माइनस डब्ल्यू आप इंटरनल एनर्जी में U1 में प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, U2 मीन्स U2 माइनस U1 मीन्स क्यू माइनस डब्ल्यू। ओके, इफ equation first means del U, suppose an internal energy change Q plus W हुआ, मीन्स जो एनर्जी क्यू हीट है उसने वर्क किया हो और वर्क सिस्टम में हो गया हो, तो क्यू डब्ल्यू में चेंज हो गया, डब्ल्यू भी उसके साथ सिस्टम में ही हुआ, इसलिए एनर्जी भी स्टोर हो गई। दूसरा, सपोज देन क्यू अमाउंट का कुछ डब्ल्यू वर्क सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग में हो गया, तब क्यू में माइनस डब्ल्यू में कर दिया। मीन्स इसका क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी वर्क एंड हीट। क्या कहा, किसमें रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं, क्यू प्लस डब्ल्यू एंड क्यू माइनस डब्ल्यू, इंटरनल एनर्जी वर्क और हीट में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है थर्मोडायनेमिक्स का ये। मीन्स मतलब इसका क्या हुआ, देयर इज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस फॉर हीट एंड वर्क। इंटरनल एनर्जी चेंज में जब आपने प्लस डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू जो साइन लगा रखे हैं क्यू के लिए, वह इम्पोर्टेंट टर्म है। इसका मतलब क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। आपने क्यू अमाउंट एनर्जी जो दी है वो सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब हुई है, तब आपने उसे कहा है क्यू प्लस डब्ल्यू। हीट इमिटेड बाय द सिस्टम मीन्स सिस्टम ने एनर्जी रिलीज करी बाहर, मीन्स बाहर वर्क किया, ट्रांसफॉर्म किया एनर्जी को, तब मतलब आपने उसमें क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी को आपने सिस्टम से बाहर किया हुआ है। अनदर टर्म, एंथैल्पी और हीट content. Most of the reaction in chemistry take place at constant pressure. Atmospheric pressure means a change in a volume is observed in such reactions. The change in heat is not equal to del U in them. To understand this concept, we can take an example of gaseous process in which heat is evolved. Two possibilities arise here. मतलब क्या हुआ, जब हम केमिस्ट्री में डिफरेंट रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं तब हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमारी रिएक्शंस होती हैं। तो जब हम जो वॉल्यूम में चेंज ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो इंटरनल एनर्जी उस पर थी उतना वॉल्यूम में चेंज हमें नहीं देखा गया, या उतनी एनर्जी टोटल इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम में जो चेंज हुआ उतनी कंज्यूम या स्पेंड नहीं की गई। चलिए इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। क्या करते हैं, गैसेस प्रोसेस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज इन द सिस्टम वुड एक्सपैंड अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, thus heat evolved in this system would be less than heat evolved in the system at constant volume, as some portion of heat evolved in consumed at the expansion against pressure, hence the heat evolved would be less than del U। समझिए बात, यदि किसी सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, मीन्स एक्सपैंड हो रहा है, मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, कहाँ में, सिस्टम में इवॉल्व हो रही है, वुड बी लेस देन द हीट इवॉल्व इन द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन ये हीट जो इसके एक सिस्टम के एक्सपैंड होने से, मीन्स वॉल्यूम बढ़ने से इंक्रीज हो रही है, उससे ज़्यादा भी हीट प्रोड्यूस होती। कब प्रोड्यूस होती, जब उसका वॉल्यूम एक्सपैंड ना होता तब। मीन्स यदि सिस्टम पर वर्क किया जाए और इसका वॉल्यूम इंक्रीज ना हो तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी कांस्टेंट वॉल्यूम में उस सिस्टम में वर्क करने पर। सेकंड, प्रोसेस टेक प्लेस ए कांस्टेंट प्रेशर एंड रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन। देखा आपने, प्रेशर आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट वर्क होने पर ये सिस्टम का मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, क्या, डिक्रीज वॉल्यूम वर्क हैज़ टू बी डन ऑन द सिस्टम।
काम भी सिस्टम में होने लगा। हीट इवॉल्व वुड बी मोर, ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई। हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यों इवॉल्व हुई? क्योंकि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया था। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ इवॉल्व हीट वुड बी मोर देन डेल्यू। तो जब फिर क्या, अब मतलब समझिएगा, अब इस समय पर जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है कांस्टेंट, कहाँ पर? कांस्टेंट प्रेशर पर। तो वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो डेल्यू से एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई। मीन्स एक जगह डेल्यू से एनर्जी कम, एक जगह पर डेल्यू से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई। क्यों? इस टर्म्स मीन्स डेल्यू से अलावा इस एनर्जी का जो प्रोडक्शन है या एनर्जी का जो चेंज है या दो स्टेट में एनर्जी का जो फंक्शन है, इसे मेजर करने के लिए न्यू टर्म्स आया और वो न्यू टर्म्स था एंथैल्पी। मीन्स to express the energy change during the chemical reactions taking place at constant pressure and temperature। यदि हम किसी रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर में करवाते हैं और उस समय पर जो एनर्जी चेंज होता है तब हम उससे जिससे मेजर करते हैं वो एंथैल्पी कहलाती है। एंथैल्पी एक टोटल एनर्जी इट इज अ टर्म्स which count the total energy content of a system that consists of internal energy plus the pressure वॉल्यूम एनर्जी। मतलब एंथैल्पी एक ऐसा टर्म है जो इंटरनल एनर्जी और साथ में प्रेशर वॉल्यूम, इन दोनों के रिलेशनशिप पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो दोनों को काउंट करती है। एंथैल्पी इज द मेजर ऑफ हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम अंडर सर्टेन कंडीशन। इट इज आल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट। हीट कंटेंट मीन्स एज एंथैल्पी इज del U plus P del V means pressure and volume is constant। हम एंथैल्पी को मेजर करने के लिए जिस तरह कैलोरीमीटर के को हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर के फॉर्म में सेटअप करके इंटरनल एनर्जी मेजर की, उसी तरह डेबार फ्लास्क सेटअप किया जाएगा, उसमें हम एंथैल्पी मेजर करेंगे। अनदर टर्म हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट involved in change of temperature of a system by 1 degree is called the heat capacity of the system। That is, means if you change the temperature, means increase or decrease the temperature 1 degree of the system, means their amount of heat also changed, means the amount of heat required to raise the temperature of system by 1 degree is called the heat capacity of the system। If the change in temperature is represented by del T, the amount of heat represented by Q, heat capacity in is C may be represented as then heat capacity C is equal to amount of heat means Q by change of temperature del T। means heat capacity is not a state function, state function नहीं है, it is a path function। therefore the value of heat capacity for a gaseous system at constant value and at constant pressure are different। ध्यान दीजिएगा, यह एक क्या है? स्टेट फंक्शन नहीं है क्या? फिर पथ फंक्शन है। मीन्स एक स्टेप पर डिपेंड करता है। मीन्स हीट कैपेसिटी जो गैसेस स्टेट जो सिस्टम पर गैस होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर अलग अलग होती है। कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम CV and constant pressure CP। Specific heat, the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree is called a specific heat of substance। means quantity of heat raised to the temperature of 1 gram of substance। किसी 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ती है, वह उसकी हीट स्पेसिफिक हीट कहलाती है। दिस इज आल्सो द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस लाइक मोलर हीट कैपेसिटी। मीन्स किसी भी मटेरियल का 1 मोल मटेरियल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ेगी, वह उसकी हीट मोलर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नाम पर जानी जाएगी।
Change in enthalpy and chemical reaction means in chemistry we perform different type of reactions and different thermodynamic parameters just like constant pressure and constant volume means at this volume we are going to study enthalpy of reaction at constant pressure, enthalpy of reaction at constant volume. Under this condition we perform different type of reaction just like bond dissociation and count the bond dissociation enthalpy. We count the enthalpy of combustion. We measure the enthalpy of atomization. We measure the enthalpy of phase transition. We measure the enthalpy of heat of fusion. We measure the enthalpy of evaporation, ionization, solution or dilution and etc. other at different chemical reactions.